Hello everyone, I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series of subject Mechanical Engineering Material. In today's lecture, we are going to learn about types of annealing processes. So here we go. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have learned about heat treatment. We have seen the three definitions of heat treatment, that is a combination of heating and cooling operation with a definite rate. We have also discussed about the time, temperature and transformation diagram. So TTT diagram is only useful for a rapid cooling. And after that, we have learned about the types of heat treatment processes and annealing process we have discussed. So let us discuss the learning outcomes of today's lecture. After completion of this lecture, you are able to describe these cases with a specified heat treatment processes. Select relevant heat treatment process for the given material with a justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So let us review what is the current definition of heat treatment in fast. So we have discussed the heating cooling operation or any sequence of two or more such operations applied to any other metal to improve or alter the structure or properties is known as heat treatment. It consists of heating the material to some specific temperature, holding at this temperature for a definite period of time and cooling to room temperature with a definite rate. Heat treatment is an operational or combination of operations involving heating at a specific rate, soaking at a temperature for a period of time and cooling at a some specified rate. So these are the three definitions we have earlier studied. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ले, एक्स एक्सिस पर अगर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्टील को हीट करते हैं, मतलब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बराबर है। फिर हमें कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर मिलने के बाद हम उसी टेम्परेचर पे हमारे स्टील को होल्ड करते हैं, होल्ड करके उसी टेम्परेचर पे हम स्टील को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं और उस ऑपरेशन को अपन सोकिंग पीरियड भी बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? सोकिंग टाइम या होल्डिंग टाइम। वो जैसे ही खत्म हो जाता है फिर हम उस स्टील को कूल करने लगते हैं, उस स्टील को हम डेफिनेट रेट से कूल करने लगते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हीटिंग ऑपरेशन होता है, होल्डिंग ऑपरेशन होता है और बाद में कूलिंग ऑपरेशन होता है। ये इसका सार है इन तीनों डेफिनेशंस का। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कितने टाइप्स के एनालिंग प्रोसेस रहते हैं। जैसे कि हमने देखा था फुल एनालिंग, प्रोसेस एनालिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनालिंग, recrystallization annealing and spheroidizing. So we have discussed these five types of annealing. In today's lecture we are going to study all five types of annealing. So let us discuss the first types of annealing, that is full annealing. So in annealing we have heat the steel to a temperature at or near the critical point. हम स्टील को क्रिटिकल पॉइंट के आसपास हम स्टील को हीट करते हैं। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, एक होता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट और एक होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट। लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो रहता है वो 723 डिग्री रहेगा और अपर क्रिटिकल जो पॉइंट है वह 800 डिग्री के आसपास रहेगा। ये आपने नोट डाउन करना है। तो इन फुल एनालिंग व्हाट वी हैव डू, हम सबसे पहले स्टील को हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास एंड देन होल्डिंग देयर फॉर अ टाइम पीरियड एंड देन अलाउइंग इट टू कूल स्लोली इन द फर्नेस इटसेल्फ। हम हीट करने के बाद
कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पे हम उस प्रोडक्ट को, स्टील को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद हम उसको स्लोली स्लोली फर्नास के अंदर ही उसे हम कूल करते हैं। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, इन फुल एनलिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, है ना, अगर हमें हाइपोयूटेक्टोइड स्टील मतलब जिसमें 0.76% ऑफ कार्बन से कम कार्बन रहता है, उसको हम 727 से लेकर 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। बराबर है। दैट इज अबोव A3 लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? A3 लाइन के हम इसके ऊपर उसको हम हीट करेंगे। कन्वर्ट टू ए सिंगल फेज आस्टेनाइट, उसको हम क्या करेंगे, एक फेज का आस्टेनाइट बनने तक हम उसको हीट करते जाएंगे एंड देन कूल स्लोली टू ए रूम टेम्परेचर। तो फुल एनलिंग में क्या करते हैं हम, A3 जो टेम्परेचर है, A3 की जो लाइन है उसके ऊपर तक हम स्टील को हीट करते हैं। अभी ऐसा करने से स्टील में क्या फर्क गिरेगा वो हम देखते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें हमें परलाइट जो मिलेगा वह कोर्स मिलता है, मतलब मोटा। कोर्स मतलब मोटा परलाइट, जिसके दाने जो है, ग्रेन्स जो है वो कैसे मोटे मोटे मिलेंगे। और जो उस परलाइट में फेराइट की जो मात्रा है वह बहुत ज्यादा रहेंगी, एक्सेस ऑफ फेराइट। जो हमें स्टील मिलेगा वो क्वाइट सॉफ्ट रहेगा और मोर डक्टाइल रहेगा। मेरे दोस्तों, आपके ध्यान में रखना है कि एनलिंग प्रोसेस हम सिर्फ मटेरियल को या स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, उसकी डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। दिस इज द मेन उद्देश्य ऑफ फुल एनलिंग। फुल एनलिंग अगर हम करते हैं स्टील के ऊपर तो उसकी जो हार्डनेस है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। और फुल एनलिंग में हम जो कूलिंग रेट रखते हैं वो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर रखते कि एक घंटे में सिर्फ 30 और 40 डिग्री का ही टेम्परेचर का डिफरेंस वहां पे आना चाहिए। तो मुझे होप है, मैं होप रखता हूं आपसे कि आपको फुल एनलिंग के बारे में जानकारी मिली है। अभी हम देखते हैं कि फुल एनलिंग प्रोसेस आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, फुल एनलिंग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपर में भी ये डायग्राम दिया जाता है जिसमें फुल एनलिंग जो शब्द है वो निकाला जाता है। फुल एनलिंग जो शब्द है वो निकाला जाता है और यहाँ पे एरो देके लिखा जाता है कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है। सेम डिक्टो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अभी हम समझते हैं आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर कि फुल एनलिंग प्रोसेस होती कैसे है। तो देखिए दोस्तों, फुल एनलिंग अगर हमको करना है तो स्टील को जो है A3 जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, A3 लाइन के ऊपर, A3 लाइन के ऊपर हमें स्टील को हीट करना पड़ेगा। मतलब क्या, 723 से लेकर 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको स्टील को हीट करना पड़ेगा और हमारे जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है वो हमें मिल सकते हैं। तो ध्यान में रखना बेटा, फुल एनलिंग यहाँ पे होती है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हमको स्टील को हीट करना पड़ता है। फिर फुल एनलिंग के क्या एडवांटेजेस है? फुल एनलिंग अगर हम करते हैं तो उसका ग्रेन साइज रिफाइन होता है, स्ट्रेंस स्ट्रेस सभी उसमें से रिड्यूस हो जाते हैं, स्टील में सॉफ्टनेस आ जाती है, स्टील मशीनेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, फॉर्मेबिलिटी बढ़ जाती है और उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फुल एनलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो हम एनलिंग की प्रोसेस देख रहे हैं वह है रिक्रिस्टलाइजेशन एनलिंग। कभी क्या होता है दोस्तों, हम कुछ कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन करते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि स्टील के अंदर स्ट्रेन्स और स्ट्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से स्टील का जो है ग्रेन जो रहता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बीच में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होना नहीं चाहिए तो हमें रिक्रिस्टलाइजेशन एनलिंग नाम की जो प्रोसेस है वो हमें करनी पड़ती है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। ड्यूरिंग एनी कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन द मटेरियल बिकम्स हार्डर, है ना। जब हम कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन करते हैं तो मटेरियल कैसा बन जाता है? हार्ड बन जाता है। बट लूसेस इट्स डक्टिलिटी, और उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। दिस implies that to continue deformation the material needs to recrystallize wherein strain free grains replace the cold work grains। वहां पे क्या होता है कि
उसका डिफॉर्मेशन होता है वेयर इन स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स, जहां पे स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है कोल्ड वर्क ग्रेन से। Hence, recrystallization annealing is used as an intermediate step in cold deformation process। जहां पे भी कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन अगर होते हुए हमको दिख रहा है तो हमें रिक्रिस्टलाइजेशन एनलिंग वहां पे करना बहुत जरूरी पड़ता है। टू अचीव दिस, अगर हमको ये एनलिंग करना है तो सैंपल को क्या करना पड़ेगा, सैंपल इज हीटेड बिलो A1। A1 मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, 723 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हमें स्टील के सैंपल को मतलब स्टील को हीट करना पड़ेगा। एंड हेल्ड, हेल्ड मतलब रखना, होल्ड करके रखना। Therefore, sufficient time for recrystallization to be completed। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो क्रिस्टल चेंज हुआ है, उसका क्रिस्टल जो पहले था उसमें लाने तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आपने रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग में अपने ध्यान में रखना है कि ये कोई तो भी इंटरमीडिएट स्टेप है, जो क्रिस्टल उसने खोए थे उसको वापस लाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। और टेम्परेचर ध्यान में रखना है बिलो A1 मतलब बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं अभी। रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग को अगर हम आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से वह दिखेगी। देखिए दोस्तों, ये जब हम आयरन कार्बन डायग्राम के ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये A1 टेम्परेचर दिख रहा है। कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पे, A1 टेम्परेचर, दैट इज 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमें रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग करना है तो स्टील को हमको इसके नीचे हीट करना पड़ेगा। ये डायग्राम भी पेपर में आई हुई है। यहां से रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग नाम का शब्द हटाया गया है और ऑप्शन में पूछा गया है कि ये कौन से टाइप की एनालिंग प्रोसेस है। तो दिस इज अ रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग प्रोसेस। आई होप यू गेट इट। Let us discuss the next annealing process, that is process annealing। तो प्रोसेस एनालिंग जो है वो सब क्रिटिकल एनालिंग के जैसे भी है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम जो हमारी स्टील का जो वर्कपीस है उसको भी हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, हीटेड टेम्परेचर बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना अपना 723, तो 723 के नीचे भी यहाँ पे हमको इसको हीट करना पड़ता है। फिर उसको कुछ देर तक उस टेम्परेचर पे रखना है और धीरे धीरे उसको ठंडा करना है। Cooling rate is little importance as the process is being done at a subcritical temperature। अगर ये प्रोसेस सब क्रिटिकल टेम्परेचर पे हो रहा है तो यहाँ पे कूलिंग रेट का बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपने ध्यान में रखना, इट इज सेम एज अ रिक्रिस्टलाइजेशन एनालिंग, बस इसमें थोड़ा सा हमें कूलिंग रेट के बारे में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस एनालिंग की हमको जरूरत क्या है। तो सबसे पहले है कि ये जो हमारी प्रोसेस एनालिंग है वो क्या करती है कि रिड्यूस करती है हार्डनेस को और डक्टिलिटी को ये बढ़ावा देती है ऑफ कोल्ड वर्क स्टील। जिस स्टील के ऊपर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन हो चुका है उस स्टील की ये हार्डनेस को रिड्यूस करती है और डक्टिलिटी को ये बढ़ाती है। सो फर्दर वर्किंग में बी कैरिड आउट इजीली, उसके बाद वो जो भी प्रोसेस होंगी वह इजीली कैरिड आउट हो सके। ये जो प्रोसेस है एक्सटेंसिवली यूज होती है शीट्स और वायर्स में। जहाँ पे शीट्स और वायर अगर हमको स्टील के बनानी है तो प्रोसेस एनालिंग जो नाम की प्रोसेस है वो हमको बहुत अनिवार्य रहती है। पार्ट्स विच आर फैब्रिकेटेड बाय कोल्ड फॉर्मिंग सच एज स्टैंपिंग, है ना, स्टैंपिंग की वजह से, एक्सट्रूजन की वजह से, अपसेटिंग से, ड्राइंग ऑपरेशन से जो भी कुछ फैब्रिकेट हम कर रहे हैं वहां पे भी हमें प्रोसेस एनालिंग नाम की जो एनालिंग है वह करना बहुत अनिवार्य है एज एन इंटरमीडिएट स्टेप। स्केलिंग और ऑक्सीडेशन कैन बी प्रिवेंटेड, अगर हम उस स्टील के पार्ट को कोरोजन नहीं होना देना चाहते, उसका हमें कोरोजन रेजिस्टेंस अगर हमें बनाना है तो मेरे दोस्तों हमें प्रोसेस एनालिंग करना बहुत अनिवार्य है। बराबर है। तो दिस आर द पर्पसेस ऑफ प्रोसेस एनालिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एनालिंग की प्रोसेस हम देखते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस रिलीविंग, है ना, स्ट्रेस रिलीविंग एनालिंग। तो देखो जो भी स्टील के कंपोनेंट के अंदर जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए हैं उसको बाहर निकालना है। इंटरनल स्ट्रेसेस को अगर हमको बाहर निकालना है तो हमें स्ट्रेस रिलीविंग नाम का ऑपरेशन, स्ट्रेस रिलीविंग नाम के एनालिंग प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा।
अभी तुम बोलोगे स्ट्रेसेस कहाँ पे आएंगे, तो मटेरियल जो हमारी स्टील है बहुत जगह से घूम के आती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उसके वजह से वो प्रोडक्ट के अंदर, उस स्टील के अंदर बहुत सारे इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जिसके वजह से फेलियर ऑफ स्टील कंपोनेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस रिलीविंग एनलिंग नाम की प्रोसेस उस कंपोनेंट के ऊपर करनी पड़ेगी। चलो आइए देखते हैं। As the name suggests, this process is employed to relieve the internal stresses. Internal stresses are those stresses which can exist within a body. वो उस कंपोनेंट के अंदर रहते हैं। This is called as a residual stresses. उसे हम residual stresses भी बोलते हैं। No microstructure changes during this process. ये बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसमें स्टील का जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वह चेंज होता नहीं है। अब ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं स्टील के अंदर वो कैसे होते हैं? सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग से होते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन से होते हैं, मशीनिंग, अगर आपने वहां पे लेथ मशीन के ऊपर और मिलिंग मशीन के ऊपर कोई कंपोनेंट अगर बनाए हैं तो उसके उस स्टील के कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस रहेंगे, मतलब रहेंगे। ग्राइंडिंग ऑपरेशन से, शॉर्ट पिनिंग से, हैमरिंग से, कोल्ड वर्किंग से, केस हार्डनिंग से, इलेक्ट्रोपेटिक कोटिंग से, प्रेसिपिटेशन एंड फेस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इतने ज्यादा जरिया है, उसके वजह से उस स्टील के कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, उसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इन स्ट्रेस को हमको क्या करना है, रिलीव करना है, तो हमें स्ट्रेस रिलीविंग ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेस रिलीविंग एनलिंग ये काम कैसे करती है, तो हम इसको आयरन कार्बन डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो स्ट्रेस रिलीविंग एनलिंग में होता क्या है कि हम जो स्टील है वो 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, बराबर है। स्ट्रेस रिलीफ एनलिंग में हम क्या करते हैं, स्टील को हम 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, और अगर हम स्टील को उस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहां के जो भी स्ट्रेसेस है वो क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बराबर है। अभी हम देखते हैं स्पिरोडाइजेशन एनलिंग प्रोसेस, या इसको हम स्पिरोडाइजिंग भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट process given to a high carbon steel, requires extensive machining prior to final hardening and tempering. हम ये स्टील स्पेसिफिक, ये जो प्रोसेस है स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमें स्टील के ऊपर मशीनिंग होना उसका हमें ज्यादा महत्व है, ना कि उसके हार्डनिंग और टेम्परिंग का। इसका जो मेन उद्देश्य है स्पिरोडाइजिंग का, इट इज टू इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ सैंपल। सैंपल की डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हम स्टील को हीट करते हैं, और बहुत ही धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली 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 हम उस स्टील के कंपोनेंट को क्या करते हैं, कूल करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जिसमें जो आयरन और कार्बाइड जो रहता है स्टील के अंदर, जो आयरन और कार्बाइड जो रहता है वो स्पिरोडिकल शेप लेता है ना, छर्रे जैसा स्पिरोडिकल शेप या बॉल्ड अप शेप ले लेता है। कौन सा, बॉल्ड अप शेप। इसलिए इस प्रोसेस को हम स्पिरोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस इंप्रूव करती है प्रॉपर्टीज किसकी, मीडियम और हाई कार्बन स्टील से, है ना। मीडियम और हाई कार्बन स्टील जो रहती है उनकी ये प्रॉपर्टी चेंज करती है, सच एज मशीनिंग और कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी, है ना। मशीनिंग और कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टी यह स्पिरोडाइजिंग प्रोसेस इंक्रीज करती है। चलिए दोस्तों, इसको हम आयरन कार्बन डायग्राम के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो रेंज है ये है हमारा, कौन सा रेंज है ये, स्पिरोडाइजिंग वाला। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के भी नीचे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपना ये था A1 723, तो 723 के भी नीचे अगर हम स्टील को हीट करते हैं और बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसको हम अगर कूल करते हैं, तो हमें जो स्टील का प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही डक्टाइल मशीनेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिरोडाइजिंग एनलिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे ये मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करता है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन अपन फैसिलिटेट कर सकते हैं,
हमें कोई भी डिजायर्ड स्ट्रक्चर चाहिए वो हम ले सकते हैं। टूल स्टील को ये सॉफ्ट बनाता है, सरफेस फिनिशिंग को बढ़ाता है, क्रैकिंग स्टील के कंपोनेंट के अंदर होने देता नहीं। तो इट इंप्रूव मशीनेबिलिटी, फैसिलिटेट कोर वर्किंग ऑपरेशन, ऑब्टेन डिजायर्ड स्ट्रक्चर, resoften the tool steel and improve the surface finish and prevent the cracking of steel। अभी हम देखते हैं कि स्टील जो हम एनलिंग प्रोसेस पढ़े हैं वो एनलिंग प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है, अगर हमको बोल्ट बनाना है, शाफ्ट बनाना है, लॉक नट्स बनाना है, उनके लिए हम एनिल्ड स्टील है ना, जो स्टील के ऊपर एनलिंग की रहती है उसे हम एनिल्ड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनिल्ड स्टील। द एंड ऑफ मेटल स्टैंप सेट है ना, ये भी बना सकते हैं। ब्रेड कटिंग, सॉ ब्लेड बना सकते हैं। टंगस्टन रॉड है ना, ये भी बना सकते हैं। ब्रेजिंग वायर भी बना सकते हैं हम। स्टील वायर ऑफ मीडियम मेडिकल एप्लीकेशन। स्टेनलेस स्टील कैप्स फॉर डेंटल एप्लीकेशन। रिंग गेजेस भी बना सकते हैं। हाइड्रोलिक मोटर का शाफ्ट बना सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्यूल टैंक फिल नेक फॉर बेंडिंग। स्टेलिटिक टिप्स ऑन स्लॉ बेड। continuous annealing of copper wire, oval cut on stainless steel tube prior to extrusion and end of steel wire on oven wire mesh है ना, ओवन जो रहता है उसके अगर हमको वायर्स बनाने हैं तो उसके लिए हम एनलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं और उससे हम वो बना सकते हैं। these are the some examples of annealed steel। So these are the unit outcome we are achieved. Describe the sketches. With sketches we have studied the heat treatment processes and select relevant heat treatment process for the given material with a justification. So let us review the today's lecture. In today's lecture we have studied about full annealing, process annealing, stress relief annealing, recrystallization annealing and spheroidized annealing. These are the program outcomes which are achieved by this lecture. These are the most likely questions which are asked in MSBT. In every exam there are 2 to 3 questions on annealing process. When there is a diagram is given, they must ask about the temperature, how they cooled, applications of annealing, etc. तो थैंक यू वेरी मच गाइस। हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग प्रोसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी लर्निंग।